Now, what is the due diligence? It is a process of the investigation. ये कौन करता है? It is being performed by the investors. कब कब करते हैं? Into the details of the potential investment. जब भी हमने किसी entity में invest करना है, तो उसके अंदर हमने उसके operations देखनी है, उसकी management देखनी है, उसकी financial, non-financial possibilities देखनी होती है, ठीक है? Now, this analysis is carried out before acquiring the controlling interest, ताकि हम confirm कर सके that business is what it appears to be. अब हमने कब कब ये अप्लाई करना होता है? जब भी हमने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई लोन एडवांस करना है, कोई क्रेडिट देना है, ठीक है? अब डीडी का जो प्रोसेस है, इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन। अब कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे हमें ड्यू डिलिजेंस जो है वो कैरी आउट करना पड़ता है? लाइक वी हैव कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, we have venture capital financing, and third we have the public offerings. So this is an introduction of the due diligence. Now, what is the importance of the due diligence? We have to confirm that business is what it appears to be. जैसा business दिख रहा है वो एक्चुअल में भी वैसा ही है. Then we have to identify the potential deal killer defects क्या रहते हैं in the target company. Then we have to avoid the bad business transactions. Third, we have to verify that transaction जो है वो comply करती है with the investments or the acquisition criteria. So these are all the importance of the due diligence. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? We have to confirm that business is what it appears to be. जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में भी वैसा ही है. Then we have to identify the potential deal killer defects क्या रह सकते हैं in a target company. Then we have to avoid the bad business transactions. Third, we have to verify that transaction जो है वो हमारी comply तो करती है ना with the investments or the acquisition criteria. ठीक है? Next we have the classification of the due diligence. सबसे पहले आती है commercial and the operational. Now it is being performed by the acquirer for evaluation from the three perspectives. Three perspective कौन से? Commercial, स्ट्रैटेजिक एंड द ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से हमें कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा. सेकंड वी हैव द फाइनेंशियल. अब फाइनेंशियल में क्या होता है? नाउ इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हिच पर्टेन्स टू द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी. हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी होती है और फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी है ना वो इसके अंदर देखना है इन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. Third, we have the tax. We have to look at the tax effect क्या रहेगा of the mergers and the acquisitions. Fourth, we have the information system. It pertains to all the computer systems से जब हम due diligence करेंगे. That is what information system is. Legal कौन सा होता है? We have to see the legal aspects कौन से रहते हैं of the functioning of the entities are being reviewed. And environmental क्या है? We have to study the entity का environment कैसा है, flexibility कैसी है और adaptability कैसी है. एंड लास्ट वी हैव दैट इज अ पर्सोनल. हमने एंटिटीज के पर्सोनल पॉलिसीज भी देखने हैं कि वो इन लाइन तो है ना, या फिर कोई इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स तो नहीं रिक्वायर्ड है. ठीक है? तो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्यू डिलिजेंस. सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? दैट वाज अ कमर्शियल एंड ऑपरेशनल, जिसके अंदर हमने थ्री पर्सपेक्टिव देखने होते हैं, कमर्शियल, स्ट्रैटेजिक एंड द ऑपरेशनल. सेकेंड वी हैव द फाइनेंशियल, जिसके अंदर हमने क्या देखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं और फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी है वो देखने हैं. Third, we have the tax. We have to look at the tax effect क्या रहेगा of the mergers or the acquisition. Fourth, we have the information system. Now it pertains to all the computer systems. Legal में क्या है? Legal aspects क्या रहेंगे of the functioning of the entities. Environmental में क्या होता है? We have to study the entities का environment हो गया, flexibility होगी, adaptability होगी. एंड लास्ट वी हैव दैट इज अ पर्सोनल. एंटिटी की पर्सोनल देखनी है कि उसकी पर्सोनल पॉलिसीज जो है वो इन लाइन तो है ना, या फिर उसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत तो नहीं है फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. सबसे पहले आता है वी हैव टू चेक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी. हमने टारगेट कंपनी की हिस्ट्री देखनी है और बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर देखना होता है. ठीक है? सेकेंड वी हैव द अकाउंटिंग पॉलिसीज. वी हैव टू चेक दैट अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो फॉलो तो की जा रही है ना, कोई चेंजेस तो नहीं आए रिसेंट पास्ट में. थर्ड वी हैव द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करी गई है, स्टैट्यूट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही करी गई है. दैट इज अ पीपीएफएस, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमने कैसे शो करी है, ट्रेडिंग रिजल्ट्स क्या रहे हैं फॉर द पास्ट 4 to 5 years टू अराइव एट द नॉर्मल प्रॉफिट्स. देन फोर्थ वी हैव द टैक्सेशन, कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहा है ऑफ द मर्जर्स. Fifth is the cash flow. Cash flow क्या होता है? It is important to know if the company is able to meet its cash requirements. वो cash requirements को meet up तो कर पा रही है ना, like कंपनी जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर पा रही है फॉर द ट्रेड पेबल्स हो गया, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया, या फिर कोई भी अदर स्टेक होल्डर्स हो गया. कंपनी जो है अपने ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर इन्वेंट्रीज को कैश में तो कन्वर्ट कर पा रही है ना. देन हाउ विल द कंपनी इज एबल टू डिप्लॉय द फंड्स. वो कैसे अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रही है, कोई फंड्स हमारे आइडल तो नहीं रह रहे हैं जहां पे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट आ सकता है बाय इन्वेस्टिंग दोज फंड्स.
देन इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है ऑफ द कंपनी की वो इजिली रिलाइजेबल तो है ना। नेक्स्ट वी हैव द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कि उसकी नेक्स्ट 5 years की एजम्पशंस क्या है, उसकी वर्किंग्स क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज में क्या आता है कि रिटेंशन रेशियो क्या है ऑफ द एम्प्लॉयज, लेबर लिटिगेशन का क्या क्या इम्पैक्ट आता है, ईसॉप कैसे दे रही है कंपनी। एंड लास्ट वी हैव दैट इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इफ नॉट लीगली कंप्लायंट कंपनी ने डेफिनेटली उस पेनल्टीज जो है वो पे करनी पड़ेगी। सो देयर आर 8 स्कोप्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, दैट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, टैक्सेशन क्या है, कैश फ्लो क्या है। देन वी हैव द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। अब हिडन लाइबिलिटीज क्या होती है, द कंपनी में नॉट शो एनी शो कॉज नोटिस विच हैज नॉट मेच्योर्ड इनटू द डिमांड एज कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। अब शो कॉज नोटिस जो कि मेच्योर अभी नहीं हुआ है तो वो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज में अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करती है, इवन दो दैट इज मटेरियल और या फिर वो इंपॉर्टेंट भी है। सो वो हमारी हिडन लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है। सेकंड वी हैव द कंपनी में हैव गिवन द लेटर ऑफ कंफर्ट, उसने को दिया हो सकता है टू द बैंक्स। नाउ सिंस दीज आर नॉट द गारंटीज, अभी कोई गारंटी नहीं है, रादर इट इज जस्ट अ लेटर ऑफ कंफर्ट, तो ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के अंदर शो नहीं किया होगा। देन वी हैव द टैक्स लाइबिलिटी, क्या रहेगी अंडर द डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट्स हो सकती है, कोई फ्यूचर लीज लाइबिलिटी हो सकती है, अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन हो सकता है, एग्रीमेंट टू बाय बैक द शेयर्स। देन वी हैव द पेंडिंग फाइनल असेसमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी, जहां पे सिर्फ प्रोविजनल असेसमेंट करी गई है ऑफ द कस्टम ड्यूटी, वो भी हमारी पेंडिंग हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द हिडन लाइबिलिटीज। सबसे पहले हमने कौन सी देखी, दैट वाज कि कोई शो कॉज नोटिस है विच हैज नॉट बीन मैच्योर्ड इनटू द डिमांड और हमने कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में शो नहीं किया हुआ है। देन वी हैव कोई लेटर ऑफ कंफर्ट दिया हो सकता है बैंक को जो कि गारंटी नहीं है। देन थर्ड वी हैव कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स की कोई लाइबिलिटी आ सकती है, कोई सेल्स टैक्स असेसमेंट आ सकती है, कोई फ्यूचर लीज लाइबिलिटी आ सकती है, कोई अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट किया हो कि हम बाय बैक करेंगे शेयर्स को इन द फ्यूचर, वो हमारी लाइबिलिटीज है वो शो नहीं की गई है इन द बैलेंस शीट। Then last we have the pending final assessment क्या होगी of the custom duty where only provisional assessment has been completed. Next we have that is the overvalued assets. अब overvalued assets कौन से होते हैं कि कोई रिसीवेबल्स जो है हमने वो कलेक्ट नहीं करे हुए, वो अनकलेक्टेबल है, कोई ऑब्सोलीट या फिर स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज हमने शो करी हुई है, इससे हमने एसेट्स को बढ़ाया हुआ है, इसकी वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा करी हुई है अपने एसेट्स की। देन इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं बची है, कोई लिटिगेटेड एसेट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हो गई लिटिगेटेड है वो। इन्वेस्टमेंट्स जो है हमने कॉस्ट पे कैरी आउट की हुई है इवन दो द रिलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर बिकॉज यू हैव टू शो द इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमने जो शो करी हुई है दे आर कैरिंग वेरी लो रेट ऑफ द इनकम और द रिटर्न। देन हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर किया हुआ है जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी हमारे एसेट्स को ओवर वैल्यू ही करते हैं। देन वी हैव द वर्क अप्रोच टू डीडी, रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल्स व्हिच आर सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी। हमने रिव्यू करना है और रिपोर्ट करना होता है ऑन द फाइनेंशियल्स व्हिच हैज बीन सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी। देन वी हैव टू असेस द बिजनेस बाय द साइट विजिट करेंगे हम। देन वर्किंग थ्रू द डीडी प्रोसेस विद एक्वायरिंग कंपनी। एंड लास्ट वी हैव टू प्रिपेयर, जब हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया अपना डीडी का प्रोसेस, फिर हम क्या करेंगे एक ऑफर प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज द वर्क अप्रोच टू द डीडी। नाउ हाउ टू कंडक्ट द डीडी, यू हैव टू स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई ट्रबल स्पॉट्स कहाँ आ सकते हैं एंड देन वी हैव टू आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट दैट। We have to get the best team of the people. You may hire the DD experts after checking their past experience. जब हमने उसका past experience देख लिया तब हम अपने DD experts भी जो है वो hire कर सकते हैं ताकि हमें best team of people जो है वो मिल सके। Then third we can get help in all areas to get 360-degree view. हमें help जो है सारे areas में लेने की जरूरत पड़ सकती है। Then we have to talk to the customers हो गया, we have to talk to all the stakeholders like suppliers हो गए, business partners हो गए, employees हो गए, customers हो गए, ठीक है। Then take the risk management approach, हमें एक risk management approach भी जो बनानी पड़ेगी। And last we have to prepare a comprehensive report which is going to give the details of the compliance and the substantive risk. And last we have that what are the contents of the due diligence. इसके अंदर हमारे पास बेसिक पॉइंट्स आते हैं लाइक समरी हो गई ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो हमने कैरी आउट किया है, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्यू डिलिजेंस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्यू डिलिजेंस हमने कैसे करी,
असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज हमने देखा था, असेसमेंट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स देखा, नेटवर्थ क्या है, एंड स्वॉट एनालिसिस. So these are the contents of the due diligence. So here we mark our end to the chapter due diligence. इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, what is the definition of the due diligence, classification क्या होती है due diligence की, scope क्या है due diligence का, hidden liabilities क्या है, overvalued assets क्या है, work approach for the DD कैसे रहेगा, ठीक है, and what are the contents of the DD, right? So thank you.